जोधपुर में इंटरनेशनल इलेक्टोरल अफेयर्स सिंपोजियम में यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजलिया में डॉक्टरल रिसर्च सोनाली ने भी अपना पेपर प्रेजेंट किया है। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रिसर्च, फिजिकल एनवायरनमेंट और अपने शोध पत्र ऑप्टिमाइजिंग कंडीशन को लेकर अपनी बात रखी है। सोनाली से खास बातचीत की है एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा ने। सुनिए। हमारे साथ हैं सोनाली, जो कि जो पूरे रिसर्च हैं कोलंबिया में किस तरह से हो रही है पॉलिसी रिसर्च, उसके बारे में बताएंगे। हाउ डू यू फीलिंग अबाउट ऑल रिसर्च वर्क इन दैट काइंड ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस? व्हाट डू पर्सनल थिंकिंग एंड फीलिंग? So I think it's a really important time to be thinking and researching democratic processes because there are a lot of challenges today about the environment, the physical environment in which we live in, but also political polarization and challenges like that. So research is really important for coming up with policy ideas to support our election managers and others involved in our democracy. What is your paper? What is its headline, and what is overall your research? So today I'm going to be talking about optimizing conditions and training for election staff success. So it's really talking about how important it is to ensure quality in training, institutionalization, so that training is conducted throughout the electoral cycle, but also to think about what organizational conditions and processes are needed to enable staff to succeed. What is your observation about a whole Indian democratic process, and what did you found? What is importance and what is scope of improvement? So the Indian election system is incredibly impressive. So the sheer scale of everything that's done here is just on another level compared to other countries. So I think it's a really important area, both for us as researchers to study, because there are lots of lessons, but also to think about where improvements can be made in order to strengthen the systems, increase trust and confidence in the processes, and ensure that the elections inspire confidence among citizens and therefore among the outcomes and the politicians that are elected in these processes. इन्होंने ये बताया खास तौर पर कि जो भारत का जो पूरा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो काफ़ी कटिंग एज पर है, यानी अमेरिका से अगर तुलना की जाए तो काफ़ी अच्छा उसको बताया जा सकता है। हालांकि उन्होंने ट्रेनिंग और जो संसाधनों को एकजुट करके उसका बेहतर उपयोग करने में जो भूमिका है वो निभानी होगी, यह उन्होंने खास तौर पर बताया। कैमरा पर्सन भवानी के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर। अपनी तरह की अनूठी इस सिंपोजियम में आईसीपीएस के प्रतिनिधि पॉल ने भारत को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मॉडल बताते हुए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की चुनौती को लेकर अपनी राय जताते हुए इसके बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया है। पॉल से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा ने। सुनिए। हमारे साथ हैं पॉल ग्रीनहॉल, जो कि आईसीपीएस जो कि पूरी इसका जो अंतर्राष्ट्रीय सिंपोजियम है उसका आयोजन करता है। तो जो तमाम डेमोक्रेटिक जो देश हैं, जो सोसाइटी है, उनको एग्जिट करने में भूमिका निभाता है और इन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है पॉल ने भी। और क्योंकि ये आईसीपीएस से खासे जुड़े रहे हैं और आईसीपीएस में रिसर्च वर्क जितना भी है ख़ास तौर पर यूके की ओर से, तो इन्होंने काफ़ी अपना उसमें पार्टिसिपेशन किया है। पॉल से बात करेंगे कि पॉल सर, व्हाट इज़ योर ओवरऑल एक्सपीरियंस अबाउट आवर डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इंडिया? It is quite similar to Britain and adopting from Britain actually, and what is your experience? I think when anyone from outside of India looks at the democratic process, it's always with a sense of wonder at how well it works. Because of the sheer numbers involved, the challenges of having the world's largest democracy generates so many challenges which aren't seen elsewhere. So I think that people look at this as being a great model because if it can work here, it can work anywhere. What is your overall experience? Because you organizing and you are participating quite a lot symposium. What is overall your idea about this whole symposium, and what is your participation today? Right. Okay.
Well, the first thing is I'm really impressed. I mean, the number of people who have attended and the importance of these people. It's very, very impressive to get such a good group of people together. I think that what we're hoping to bring today is there are very many challenges when an election runs. One of those is that the number of people that are required to run an election successfully is enormous. And a lot of those people are being brought in and need to be trained very quickly in the skills they need to be effective. So this is where we fit in. And this is what we're hoping to be able to speak about today. The great challenge of taking a large number of people and training them to a high standard and to a standard that can be quantified in a very short space of time, or sometimes in a short space of time. These are the challenges that face any electoral process, and that's really where we try and fit in, and that's what we're going to be talking about later on. चूँकि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उस हिसाब से जो चुनौतियां हैं और उस चुनौतियों से लड़ने की जो ताकत है, उसके लिहाज से भारत ने जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जो सुधार है उसमें काफ़ी अच्छा काम किया है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर। ग्रासरूट लेवल की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव से सीधे जुड़े जैसलमेर कलेक्टर प्रताप सिंह ने इलेक्टरल अफेयर्स सिंपोजियम में शिरकत की। उन्होंने इस तरह के चुनाव में अक्सर होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार काम करने की पैरवी की है। प्रताप सिंह से खास बातचीत की है एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा ने। किस तरह का सर अभी तक एक्सपीरियंस रहा है आपका, जो क्योंकि अगर कलेक्टर स्तर पर बात करें तो काफ़ी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, पूरा चुनाव मैनेजमेंट जो है कलेक्टर संभालते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर। किस तरह का सर एक्सपीरियंस रहा है इस बार? अभी लोकसभा चुनाव हमने संपन्न कराए हैं और आज हम यहाँ 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में पधारे हैं। इसमें ICPS इंटरनेशनल सेंटर फॉर पार्लियामेंट्री स्टडीज़ और राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक्त तत्वाधान में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो हमें उम्मीद है हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस कॉन्फ्रेंस में। पहले जो कि चुनाव प्रोसेस होता है तमाम तरह का, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में कई बार हम ये देखते हैं कि खासा इन्वॉल्वमेंट रहता है राजनीति का, और चूंकि लोकल लेवल की जो राजनीति होती है वो कई बार जोखिम भरी होती है, कई बार हिंसक भी देखी जाती है, तो उसमें आपका मैनेजमेंट का मूल मंत्र क्या रहता है? इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश रहते हैं। जो प्रशासनिक प्रक्रिया होती है उसके स्पष्ट रूल होते हैं, उसके हिसाब से जो भी निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा डालते हैं उनको नियमानुसार टैकल किया जाता है। ये इंटरनेशनल सिंपोजियम में किस तरह से मदद मिल सकती है भारत के जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसके सुधार के लिए, क्योंकि डिजिटल एरा में कई चीज़ें इन्वॉल्व भी करनी और संसाधनों का बेहतरीन उपयोग भी करना है, कितना उपयोगी हो सकता है इस तरह का सिंपोजियम? ऋतुराज जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी मैं शेड्यूल देख रहा था, उसमें कई सेशंस हैं इसमें अलग अलग। डिसइंफॉर्मेशन को कैसे रोकना है, उसके बाद इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ जो हैं उनको कैसे ट्रेनिंग उनकी कैसे ठीक करनी है, इन सब सेशंस पर बात होगी। तो बिल्कुल जैसा आपने बोला डिजिटल एज के अंदर कैसे डिसइंफॉर्मेशन को रोकना है, उन सब मुद्दों पर भी चर्चा होगी, तो हमें उम्मीद है हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये हैं प्रताप सिंह, जैसलमेर कलेक्टर। इनका कहना है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है भारत का, और ख़ासतौर पर जो निजी संस्थाएं, जो बुनियादी संस्थाएं हैं, पंचायती राज संस्था या शहरी निकाय संस्था, उनमें जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने में जो सिंपोजियम है वो खासा मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि इसके जो अलग अलग तरह के जो सेशन हैं उसमें ट्रेनिंग से लेकर तमाम ऐसी बातों पर जोर दिया गया है कि किस तरह से डिजिटल एरा में जो चुनाव सुधार हैं उसको कायम रखते हुए आगे बढ़ा जाए और लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत की जाए। कैमरा पर्सन भवानी के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर। इंटरनेशनल इलेक्टरल अफेयर्स सिंपोजियम को मूर्त रूप देने वाले ICPS के प्रतिनिधि कॉलिन ने बताया है कि भारत का लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपना इतिहास रहा है। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ओपिनियन कन्वर्सेशन, संवाद, कम्युनिकेशन का महत्व बताते हुए अलग अलग विचारों का आना और उसमें बेस्ट प्रैक्टिस को चुनने को लोकतंत्र की खूबसूरती बताई है। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा ने खास बातचीत उनसे की और खास बातचीत में उन्होंने डीप फेक जैसी कई चुनौतियों की जानकारी देते हुए तकनीक के युक्ति संगत उपयोग पर जोर दिया है। हमारे साथ हैं कॉलिन, जो कि ICPS से जुड़े हुए हैं, और इस तरह के जो रिसर्च आयोजन होते हैं तमाम तरह के जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उनको इन्होंने करीब से देखा है। कॉलिन से बात करते हैं।
What did you saw here, and what is your experience about a whole democratic process in all over the world, and what is Indian contribution to it? Well, I think the democratic process has a long way to go all over the world, and it's so pleasurable and pleasant to be in India, the largest democracy, and I think India has a huge amount that they can help other countries in their contribution and history of a democratic process. And it's very exciting to actually have this event here. And obviously, I've been fortunate enough to be a guest at many events all over the world, and really enjoying it here. What is the scope of improvement in the Indian democratic process? You see many changes, but what is improvement you found here in Indian democratic process? I think the whole democratic process starts with debate, conversation, opinion, communication, and as you see with many of the delegates here, they don't necessarily have to have the same view, the same background, the same opinion. I think the beauty of events like this, and what you're seeing in many countries, is more communication, potentially the better understanding of the other person's view, to give you a better legislation. तो ये हैं कॉलिन, इनका कहना है कि इनके जो मुख्य चिंता का विषय है वो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग करना इसका डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये इनका मुख्य बिंदु रहेगा, और इसी के आधार पर ये क्वेश्चनिंग करेंगे, क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हम आज के डिजिटल एरा में समझ सकते हैं। तो इसका किस तरह से बेहतर उपयोग किया जाए, इसके बारे में इनका मुख्य जो केंद्र बिंदु है वो विचार विमर्श का रहेगा। कैमरा पर्सन भवानी के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर। जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने चुनाव को शांतिकाल की सबसे बड़ी एक्सरसाइज बताया है। उन्होंने डिजिटल जमाने में नए ट्रेंड के हिसाब से बदलने की जरूरत बताई है। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा से खास बातचीत में उन्होंने बेहतर तालमेल के साथ तमाम दबावों के बावजूद निष्पक्षता से कैसे काम करें, इसके बारे में बताया। हमारे साथ हैं जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल जी। इनसे बात करते हैं कि किस तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सुधार की ज़रूरत है, और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको इन्होंने बहुत करीब से चूँकि देखा है एक कलेक्टर के तौर पर। क्या आपके एक्सपीरियंस रहे हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बारे में, ख़ासतौर पर पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में जहाँ पर राजनीति बहुत ज़्यादा होती है? देखिए, डेमोक्रेसी जो है अपने कंट्री की फाउंडेशनल पिलर्स के अंदर आता है, एंड डेमोक्रेसी इज़ एन एवर इवॉल्विंग थिंग। और जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब की शुरुआत यहाँ राजस्थान से ही हुई थी, एंड उसी के चलते डेमोक्रेसी के अंदर देश दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरह से नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, किस तरह की चीज़ों के ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है, इस सब के लिए एक मंथन की आवश्यकता रहती है समय समय पे। उसी के तहत आज राज्य निर्वाचन आयोग के तत्वाधान के अंदर इस इंटरनेशनल सिंपोजियम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रदेशों के डेलीगेशंस आए हुए हैं, कई प्रदेशों के SECs में आए हुए हैं, इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी आए हुए हैं। तो जोधपुर के अंदर यहाँ पर ये 25 और 26 2 दिवसीय सिंपोजियम का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है। सर, आपका एक कलेक्टर के तौर पर एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, क्योंकि मैनेजमेंट के सीधे पार्ट से आप जुड़े हुए रहते हैं, और जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जो भी कुछ किया जाता है वो निर्वाचन में लगभग आपके द्वारा ही किया जाता है। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में, और ख़ासतौर पे जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है पब्लिक का भी और पॉलिटिक्स का भी, उसमें आपके क्या एक्सपीरियंस? मैं फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मेरे को लगभग अभी तक मैंने सारे चुनाव जो है करवा लिए SDO, लाइक भले ही ग्राम पंचायत के, वार्ड पंच के चुनाव से लेके लोकसभा तक के चुनाव जो है उसका मेरे को अनुभव रहा है। तो मैं काफ़ी फॉर्चुनेट हूँ इस बात में। एंड जो चुनाव होते हैं वो एक्चुअली पीस टाइम के अंदर लार्जेस्ट लॉजिस्टिकल एक्सरसाइज होती है कंट्री के अंदर, इससे बड़ी कोई एक्सरसाइज नहीं होती।
तो यह गौरव अग्रवाल का कहना है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं भारत की उसको कायम रखते हुए सुधार की और डिजिटल एरा में लगातार बढ़ते रहना होगा, और जो इसमें भारत निर्वाचन आयोग और जो राज्य निर्वाचन आयोग की तमाम तरह की गाइडलाइंस है उसका बेहतरीन ढंग से निष्पक्षता से किस तरह से बिना दबाव में आकर उपयोग किया जा सके, ये पूरी तरह से डीएम के विवेक पर निर्भर करता है। और जो चुनाव की जो पूरी टीम है उसको संगठित करके किस तरह से तालमेल से काम किया जाए ये उस पर निर्भर करता है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर। इंटरनेशनल इलेक्टरल अफेयर्स सिंपोजियम श्रीलंका में राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य रत्ना जीवन बोले हैं कि मेरा मानना है कि वोटर्स राजनेताओं द्वारा ठगा सा महसूस करता है। आयोग को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। कम बजट या संसाधन नहीं होना एक बहाना है। लोगों का अधिकार का वास्तविक मुद्दे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। हमारे साथ हैं श्रीलंका के जो पूर्व सदस्य राज्य निर्वाचन आयोग में, उनसे बात करेंगे। रत्न जीवन इनका नाम है। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस सर इन democratic process of India and Sri Lanka? My experience is that there is a lot of cheating, and electors are cheated of their franchise, and election commissions, because they are not independent, truly independent, they tend to follow the government, and that makes me very sad. And my theme today and tomorrow would be to say that election commissions need to be independent. Here in India, we saw the lack of resources, and especially in financial aspect. Yeah. What is your suggestion about this? My feeling is that lack of resources is just an excuse not to talk about the real substance. The real substance is people's rights, and they are completely ignored. To talk about resources diverts the discussion. For example, at the last elections, it was proposed that the Hindu laws should be made part of the constitution. That is a total violation of the constitution and democratic rights. So when we talk about lack of resources, it is to divert the discussion. तो ये हैं जो पूर्व सदस्य श्रीलंका के जो निर्वाचन आयोग हैं उनके, और इनका कहना है कि कई चुनौतियां भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम और श्रीलंका के डेमोक्रेटिक सिस्टम के सामने हैं। इनमें ख़ास तौर पर चुनौती यह है कि जो संसाधनों का अभाव है वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो विल पावर की जो कमी है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और जो राजनीतिक दबाव है उससे ओवरकम करके कैसे डेमोक्रेटिक सुधार किया जाए, इस विषय पर चर्चा और सार्थक बहस होनी चाहिए। क्योंकि इनका मानना है कि केवल वित्तीय संसाधनों का रोना केवल एक सही मुद्दों से ध्यान भटकाना भर है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर। जोधपुर 2 दिनों के लिए ग्रास रूट लोकतंत्र के थिंक टैंक के नीतिगत मंथन का गवाह बना है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर पार्लियामेंट्री स्टडीज और राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के सहयोग से इसका आयोजन हो रहा है। आईसीपीएस के हेड ऑफ द रिसर्च जैक ने इसे चुनाव प्रबंधन में नवाचारों को प्रोत्साहित करने, मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग, स्टाफ मैनेजमेंट, गलत सूचना पर अंकुश लगाने, नई तकनीक के युक्ति संगत इस्तेमाल करने और संस्था के चुनाव प्रबंधन निकायों को प्रोत्साहित और मजबूत करने का कदम बताया। जैक से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा ने। राज्य निर्वाचन आयुक्तों की इंटरनेशनल सिंपोजियम कुछ देर में शुरू होने वाली है। इससे पूर्व हमारे साथ हैं हेड ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसी रिसर्च जैक से बात करेंगे। हाउ डू यू फील अबाउट दिस होल सिंपोजियम एंड व्हाट इज इट्स ओवरव्यू, व्हाट इज इट्स ओवरऑल प्रोग्राम? Yes, we're here with a number of the state election commissions. We've co-hosted this with the State Election Commission of Rajasthan, and we're here to really focus on promoting best practice in electoral management. We're particularly focused across these 2 days on looking at things such as resource management, training of temporary staff, of things like poll station management as well. And we're also looking at some of the big challenges that electoral management
both bodies are contending with at the moment, particularly on things such as disinformation and also taking advantage of new technologies and making sure we're improving electoral processes as much as possible. You have quite a lot of experience about that kind of symposium or seminars. What is your overall experience, and what do you find in India that is different in practices? Yes, so ICPS has been working in the electoral space for the last 20 years. We organise the International Electoral Awards, but we also have a number of technologies that we offer, including our SkillWise product, which helps with the training of poll station workers. We also have products which look at things such as combating disinformation as well. Overall, though, ICPS is really focused on supporting electoral management bodies and promoting their best practice. तो ये हैं जैक, हेड ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसी, और इनका जो काफ़ी बड़ा अनुभव है इस तरह के जो कॉन्फ्रेंसेस या कहें सिंपोजियम आयोजन करने का। इनका कहना है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो कई तरह की प्रक्रियाओं से गुजर रहा है और कई तरह के एक्सपेरिमेंट इसमें किए जा रहे हैं, और इसी कारण से कई तरह की जो चुनौतियां हैं उसका सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर जो संसाधनों का मैनेजमेंट है वो किस तरह से हो, इस पर फोकस करना होगा और इसकी दिशा में सुधार करना होगा। कैमरा पर्सन भवानी के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त सुधांशु ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि हर जगह इशू एक ही है, लोगों को एम्पावर्ड कैसे करें जिससे लोकतांत्रिक हक का वो इस्तेमाल कर सके। यही आयोग की जिम्मेदारी है कि कर्मियों को कैसे न्यूट्रल बना सके ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष हो। हमारे साथ हैं केंद्र शासित प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त सुधांशु जी। सुधांशु जी से बात करते हैं कि वेरियस एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं जब डेमोक्रेटिक सिस्टम में चुनाव की तरफ जाते हैं। सर, बड़ा कॉम्प्लिकेशन है जो भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात करें देश में, तो उस हिसाब से अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो कितना कॉम्प्लिकेशन मानते हैं जब हम चुनाव की तरफ जाते हैं, तो क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, हर जगह इश्यूज एक ही है, कॉमन है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि लोगों को हम कैसे एम्पावर करें, उनको कैसे अवेयर करें कि जिससे वो अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को अच्छे तरीके से निभा सकें। और उसके साथ साथ जिम्मेदारी होती है राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर कि वो अपनी संस्थाओं को कितना मजबूत बना सके और अधिकारियों को, कर्मचारियों को जो इलेक्शन प्रोसेस में जुड़े होते हैं उनको कितना न्यूट्रल बना सके कि वो इस पूरे प्रोसेस में पूरे इलेक्शन को कंडक्ट कराते समय सबके साथ न्यूट्रलिटी का बर्ताव रखें और इलेक्शन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करें। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो अलग अलग ढंग से डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, वित्तीय संसाधन के लिहाज से भी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, और अगर पर्वतीय क्षेत्र है या बहुत दुर्गम इलाका है वहाँ पर चुनाव कराने के लिए भी बड़ा संसाधन करना पड़ता है। एक पैसे की जगह वहाँ पर 100 रुपये लगाना पड़ता है। तो ऐसे में क्या देखते हैं, उनके लिए कॉमन एक सजेशन क्या हो सकता है? देखिए, डेमोक्रेसी में आपको इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी से अच्छा गवर्नेंस का और कोई मॉडल नहीं है। यूनियन टेरिटरी में चुनाव की क्या चुनौती है? खासतौर पर अभी हम समझ रहे हैं कि कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद लद्दाख में भी चुनाव होंगे, तो उस लिहाज से क्या चुनौती मानते हैं और उसकी पूर्व तैयारी क्या किस हिसाब से हो सकती है? देखिए, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें थोड़ा अलग तरह के चुनौतियां हैं। अब लक्षद्वीप है, अंडमान है, उनकी चुनौतियां अलग हैं। छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनके ऊपर लोग रहते हैं और बारिश के दिनों में वो लोग बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। 4-4, 5-5 महीने जो है उनके यहाँ जो रिसोर्सेज हैं वो मोबिलाइज करने पड़ते हैं सरकार को। धन्यवाद। थैंक यू।
तो सुधांशु जी ने अपने विचार रखे जो कि केंद्र शासित प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, और उन्होंने यह बात साफ तौर पर कही कि केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने की चुनौती तो है, लेकिन जनता के द्वारा एक लोकतांत्रिक सिस्टम खुद ही डेवलप किया जाता है, क्योंकि चुनौतियों से लड़ना उस जनता को आता है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। इंटरनेशनल इलेक्टरल अफेयर्स सिंपोजियम में राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर मधुकर गुप्ता ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया बदल रही है, सारी व्यवस्थाएं बदल रही हैं, हमें तैयारी करनी होगी और इसी के लिए सिंपोजियम एक कदम है। राज्य निर्वाचन आयुक्तों की अपनी तरह की अनूठी जो सिंपोजियम है वो आज से शुरू हुई है। इस बारे में बातचीत के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान मौजूद हैं डॉक्टर मधुकर गुप्ता जी से बात करेंगे। किस तरह के पूरा इसको लेकर जो थीम थी वो कितनी सफल हुई, क्योंकि हमने पहले सेशन में देखा काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग रहे जो सेशन भी, और कई तरह के मुद्दे इसमें रहे कि डायरेक्ट इलेक्शन हो, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो। आपने भी अपना ओपिनियन रखा, किस तरह का एटमॉस्फेयर मानते हैं हम? पहले तो ऋतुराज जी, ये आयोजन कवर करने के लिए आप पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को। देखिए, अब आपने भी देखा होगा कि चुनाव प्रक्रियाएं बदल रही हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन की घोषणा की गई केंद्र के स्तर पे, और उसके बाद हमारे बजट जो राज्य का बजट है उसमें राज्य सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के चलते नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के एक ही वक्त करने की घोषणा कर दी है। अभी बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, तो जाहिर है कि सारा निज़ाम बदल रहा है, सारी व्यवस्था बदल रही है। क्या नहीं लगता सर कि हम एक कदम आगे चलते हैं फिर 2 कदम पीछे हो जाते हैं? हम कोई भी एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे ढंग से लागू नहीं कर पाते। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी होती है या फिर बहुत ज़्यादा जनता की इच्छाओं का ज़्यादा दबाव होता है? किस रूप में देखते हैं इसको? मैं इसमें आपको उदाहरण देना चाहूँगा एक डॉक्टर का। अब अगर डॉक्टर क्लियर है कि बीमारी ये है और उसका इलाज ये है, तो इलाज फिर उसी हिसाब से करना पड़ेगा। शायद हम लोग खुद ही क्लियर नहीं है कि हमें करना क्या है। अधपका जवाब देंगे, अधपका हम जो उत्तर देंगे या हल देंगे, तो वो गले नहीं उतरेगा।